जल्दी आप ये म्यूजिक वीडियो में देखेंगे जो सवाल जो है वो मैं जल्दी पूछने वाला हूँ और बहुत ही कड़क सवाल है इस बार फिर से। दिस इज लॉन्च ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन मुंडा
Kamakhya Music Studios presents this brand new track Munda. Once again, this dapper, scintillating jodi, Anuja Sahai, the very gorgeous singer and of course actress of the song. And this hunk is right there, Jogi. को प्यार से जोगी कहते हैं. Of course, his name is Jogendra Bokal. And then, of course, इन लोगों ने तो मेहनत की है, मगर एक इंसान who is the backbone of this song. Because कोई म्यूजिक वीडियो हो, उसकी जो बैकबोन है वो गाना, वो लिरिक्स, और ये मल्टी टैलेंटेड आदमी ने सब क्रिएट किया है. The man behind this track, उमेश गिरी, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां हो जाए. उमेश प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए मेरे भाई का. So happy to see you. Happy New Year once again. And what a fantastic job you have done once again with the music. और इस बार इन्होंने खास बात ये है कि लिरिक्स भी लिखे. क्या बात है, मतलब लड़कियों को दिल को छूना कैसे है वो आपसे सीखना पड़ेगा आज हम सबको यहाँ पे. और कैसे लव स्टोरी क्रिएट की जाती है प्रभात भाई, ये बताएंगे हम. On that note, yes, we have the backbone of this song. Magar yes, the faces, the people who have been all across media, and of course the super hit jodi is once again back. So ladies and gentlemen, पहले हमारे जो हीरो हैं इस गाने के, the Munda behind this track, I think, ladies and gentlemen, give it up, ladies and gentlemen, for our Munda, Yogi. Yogendra Bokal, ladies and gentlemen. Welcome, Happy New Year. क्या बात है, क्या बात है. And of course he's right here with us. और ब्लैक एंड व्हाइट का अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है आज म्यूजिक कंपोजर और हीरो के बीच में. On that note, of course, one gorgeous lady with the melodious voice, soulful voice, and yes, she's very talented, multi-talented, of course. Needless to say, she has done a fantastic job in her last track, and this track, she's again giving her best, killing it, with moves, डांस से लेके गाना से एक्टिंग, क्या कुछ नहीं किया. Please welcome, ladies and gentlemen, this gorgeous lady Anuja Sahai. And you're looking absolutely gorgeous, Anuja. Absolutely, तालियां जोरदार होनी चाहिए, ladies and gentlemen, for Anuja Sahai. Please come in between. And you're looking gorgeous in this dress, I must say that. I have to justify the theme. Of course, absolutely, you have completely justified with the theme, of course. So, जोरदार तालियां हो जाए cast and crew के लिए, ladies and gentlemen. I think what a great way to start 2024 with Munda finally right here. तो सबसे पहला संजय जी, so many Mundas and one gorgeous Kudi. Yeah, so many Mundas but one Soni Kudi, we must say that, right? We start with the producer, the backbone. सर, जब गाना आपका पहला तो बहुत बेहतरीन हुआ है, अगला गाना मैं देख चुका हूँ जो और भी बढ़िया है, बढ़िया सेट, बढ़िया डांस, बढ़िया म्यूजिक. जब सब कुछ बढ़िया होता तो बजट भी बढ़िया हो जाता है. फिर आप किस तरह से मैनेज करते हैं सर? अभिनंदन, दो चीजें याद रखना. आदमी को अपनी जुबान पे, प्रोड्यूसर को अपनी जेब पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. दैट्स सेकेंडरी. अगर चीज अच्छी हो, मसाले अच्छे हो, अगर वॉर में एमिनेशन अच्छा हो, जैसे गाने में म्यूजिक और सिंगर अच्छा हो, I think one should not look for anything else but to make the success of this song. We wish good luck for it. क्या बात है. जिस तरह से सर ने शब्दों के साथ खेला है, नंबर्स के साथ कैसे खेलते हैं वो हम डेफिनेटली समझ सकते हैं. ऑफ कोर्स गाने से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे, बट मुंडा में क्या होने वाला है अनुजा, वी वांट टू लिसन फ्रॉम दिस गॉर्जियस कुड़ी. सो मुंडा में क्या होने वाला है, tell us something about it, and of course how was your experience working in this second music video? तो गॉर्जियस कुड़ी, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. तो पहली बात ये कि दैट वन थिंग इज दैट आई एम नॉट बीइंग एंड अभिनंदन, आई एम नॉट शोइंग फीमेल शॉविनिज्म. गाने का नाम मुंडा रख दिया है, अपलिफ्टेड मुंडा. So, as you rightly said, it's a very cute, chirpy, nice love story. और गाना बहुत धमाकेदार था. I mean, Yagnesh should agree to that. और जब हम लोगों ने गाना सुना ये, तो it was like कि यार ये मतलब, anyways I'm a little biased towards पंजाबी तड़का. तो पता नहीं, मैं नहीं हूँ पंजाबी, बट पता नहीं बहुत अंदर है पंजाब मुझ में. So thank you. So yes. So I was so much in
मैं थोड़ा सा उसको गाना शुरू कर दी थी when I heard the composition कि इसका ऐसा फील होना चाहिए and after singing so many songs what I felt was this song demanded absolutely correct expression. Wow. This song, I mean obviously हर song की सुर, ताल, melody, everything is important. But अगर इसमें ये ऐसा था, मुझे ऐसा लगा it was a little tricky song. अगर expression act नहीं होता, जिसके लिए मेरी बहुत अच्छी खासी क्लास लगी है, तो अगर नहीं होता था तो we wouldn't have been able to justify this song. So this is the audio story behind the song. Amazing. और मुझे पता नहीं था कि आप पंजाबी हैं, मुझको लगा कि पंजाबी ही हैं, वो तो आपने मेंशन किया कि हमें लगा है ना गाइस. So अनुजा, आप बहुत बेहतरीन गाती हैं, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है पिछले गाने में, इस गाने के टीजर में तो कमाल किया ही, और मैंने गाना देखा, बहुत बेहतरीन एक्टिंग है, गाती हैं, एक्टिंग करती हैं, तो अभी नेक्स्ट डायरेक्शन में भी आएंगी आप, और अगर सजल जी का हाथ रहा तो प्रोडक्शन में भी आएंगी. वो नहीं लेंगे, वो कहेंगे नहीं इधर निकाल दो. So I remember बड़ा जोड़ी का बहुत अच्छा डायलॉग था, ये मल्टी टैलेंटेड है और ऊपर से सिंगर भी है. I remember this dialogue और हम लोग इतना हंस के पागल हो गए. I think that was the icing on the cake. जब इन्होंने बात बोली तो whether it's acting or singing or dancing, I think वो सब एक ही, it's all in the same tray. तो the art and culture is in the same tray, तो अलग नहीं है. मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग करना पड़ता है, सब एक में होता है. जो इतना टैलेंटेड होता है ना, उसको लगता है कि सब फीका ही है, ये खुद ही मीठी चाय है, इनको बाकी सब फीकी लगेंगी ना यार. But anyways, we have another multi-talented personality, the backbone, जो बहुत मेहनत करते हैं, और उमेश गिरी, ladies and gentlemen, give it up. This man has been working day and night, my brother. उमेश, आपने गाना कंपोज किया, इस बार तो आपने लिखा भी है ना, और गाया भी है आपने. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक्टिंग में कब आ रहे हैं? माशाल्लाह कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हैं, आप तो सब एक्टर्स की भी जॉब खाने वाले हैं, जो भी मुझसे कह रहा है इसलिए भाड़े का है. नहीं, बट भाड़े का अच्छा लगना चाहिए ना. हमारे भाई वहाँ पे दीपक बैठे, वो भाड़े का भी खरीद ले, तब भी वो ऐसे लगते हैं. First of all, a very warm good evening to all of you, and thank you for visiting us. So, coming to your question, I just want to say कि जिसने कॉलेज लाइफ में मोहब्बतें और लड़कियों की बहुत चक्कर मारे हो ना, वो लिख सकता है इस गाने को. क्या बात है, बहुत So, मेरे साथ भी ऐसे ही था कि आजकल की जो राइटिंग है, ऐसा नहीं कि आज के लड़कों में या आज के जो भी शायर हैं उनके अंदर बात नहीं है, लेकिन वो बात क्योंकि सामने क्या प्रोडक्ट हमको देना है उस हिसाब से ही आपकी राइटिंग होती है. तो क्या चल रहा है मार्केट में, वी हैव टू सी, और क्या यूथ को पसंद आएगा, क्या आजकल का साउंड है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग द लिरिक्स आल्सो. सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, व्हिच मतलब जो भी आप कनेक्ट कर सको सामने वाले से. राइट. सो इट्स जस्ट अ कॉमन थिंग, वेरी रैंडम प्रोसेस. लास्टली आल्सो लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था आपसे कि जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि आजू बाजू क्या चल रहा है, यदि आज का कुछ चल रहा है तो. बहुत खूब. और क्योंकि आपने गाना लिखा है मुंडा, और इतनी खूबसूरत कुड़ी साथ में हो, तो कुड़ी ट्रैक कब आएगा? नेक्स्ट कुड़ी आइडिया नहीं, कोई अभी तक आया भी नहीं है यार. नहीं है. सो मच. थैंक यू. थैंक. अरे यार, मैं यही लेट जाऊंगा खुशी के हमारे प्रभाव में. खा लो कोई नहीं. डेफिनेटली, यू नो, लेट्स सी, नेवर नो. बट उमेश, जैसे प्रभात भाई ने बताया, उनकी लव स्टोरी नहीं है ना. सो आप, यू बीइंग अ रोमांटिक गाय, बिकॉज़ अपने गाने लिखे हैं, सो ऐसे लोगों की जो कॉलेज की लव स्टोरी नहीं है, उनको क्या टिप देना चाहोगे आप? जिनकी बीत गई छोड़ दो. उनकी अभी भी चल रही है. जिनकी अभी भी सिंगल है प्रभात भाई. मैं प्रभात भाई के बारे में ही बात करूं क्या? ना ऐसी बात है कि आप मतलब यार जब प्यार में आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ वो फीलिंग्स यदि आपने कभी भी अपनी लाइफ स्पैन में कभी भी एक्सपीरियंस किया है, तो डेफिनेटली कलम चल जाती है. बहुत खूब.
यही जो टिप है ना, ये सभी देश के नौजवानों के आज काम आने वाली है, जो हमें इस गाने के राइटर ने दी है. सो आई थिंक जो राइटर से आती है वो बहुत दिल पे लगती है. जोरदार तालियां फॉर उमेश गिरी. Thank you, sir. Also, I want to say, because Kamakhya Music Studios is right at the Moria landmark, so जो भी aspiring singers हैं, जो भी aspiring musicians हैं, जो composers हैं, जो actors हैं, मैं चाहूँगा कि वो they can any which ways, you know, reach out to Kamakhya Music Studios, Anuja Sahai Official, Umesh Giri, to you know have some you know guidance या फिर आप कुछ create करना चाहते हैं, you can always reach out. So Umesh, you want to say something about it? Yeah, so we are coming up with this studio of ours, and the name obviously is Kamakhya Music Studio, which is in Moria Landmark. So जो भी मैं मीडिया के थ्रू बोलना चाहूँगा, जो भी अपकमिंग टैलेंट है, जो भी चाहे आप सिंगिंग करते हैं, चाहे आप लिखते हैं, चाहे आप डायरेक्शन में हैं, please do contact us and we'll surely have a lovely product. We'll make the best product from that music studio. क्या बात है. आई थिंक बहुत सारे म्यूजिक लॉन्च मैं करता हूँ, मगर ऐसा म्यूजिक लॉन्च जहाँ पे एस्पायरिंग सिंगर्स कंपोजर्स को मौका मिले, वो मेरे भाई उमेश गिरी का. जोरदार तालियां हो जाए पर उमेश गिरी, अनुजा साहै, his team, and of course Kamakhya Music Studios. You guys are doing a fantastic job and बहुत सारी बातें करेंगे. जोगी पाजी से बहुत सवाल है मेरे, या कोरियोग्राफर भाई से बहुत सवाल है मेरे, या दिनेश मारू भाई मेंबर, मैं खेल रहा था तुम्हारे साथ. So anyways, I think it's time, Anuja. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है, और आप भी बहुत एक्साइटेड है बिकॉज आपने गाना खुद नहीं देखा है. So ladies and gentlemen, let me tell you, अनुजा ने सरप्राइज रखा था हम सबके लिए कि वो पहली बार गाना जो है एडिट के बाद मीडिया के साथ देखेगी. तो जोरदार तालियां बनती हैं for this gorgeous lady, this queen of nights. So I think बहुत सारे सवाल और भी हैं. We'll listen to that. So when हम वो करेंगे गाना लॉन्च, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अनवेलिंग. तो जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा यहाँ पे we unveil the post of this track with Anuja, Umesh, Yogi. This is a beautiful thing that Abhinandan has said, and with all the permissions and due respect of Sanjay sir, I would want to have Rakesh Ram sir with us on the stage for this lovely launch.
क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले मुंडा के बारे में बताइए हमें किस तरह का गाना है क्या रीज़न ही ये था कि क्योंकि इतना स्पेशल सॉन्ग है और इतना चोर भी इतना क्यूट गाना है, तो हम चाहते थे कि साल की शुरुआत इसी से की जाए, और ये संजय सर का बहुत अच्छा आइडिया था, बिकॉज अगर इट वॉज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल इनपुट कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा विद मुंडा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। और बजवा शहनाई ने दिवाली के टाइम पे खूब धूम धड़ाका कर दिया, एंड द वेडिंग सीजन इज स्टिल गोइंग ऑन। सो आई एम हैप्पी दैट एवरीवन इज जस्ट लविंग द सॉन्ग, और वो गाना अभी भी शादियों में बजना शुरू हो गया है, लोग उस पर डांस कर रहे हैं, उसका हुक स्टेप इतना यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, और मुंडा में भी ऐसा ही था, थोड़ा नटखट, थोड़ा प्यार, थोड़ा छेड़खानी। सर एज अ प्रोड्यूसर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साल का पहला गाना लॉन्च किया आप लोगों ने, और लोग जो है यहाँ का रिस्पॉन्स को हमने देखा, ऑडियंस का रिस्पॉन्स कितना इम्पोर्टेंट था? साथ में अगर देखा जाए हमको ऐसा करना है कि हर वक्त हर महीने एवरी क्वार्टर एटलीस्ट एक नया गाना देना है जो लोगों को पसंद आए और लोगों का मूड उससे और अच्छा हो जाए। एंड व्हेन इट कम्स टू हिट्स वी ऑल लुक फॉरवर्ड फॉर हिट्स, क्योंकि किसको हिट्स नहीं चाहिए, सबको हिट्स चाहिए होते हैं, और अगर लोगों को पसंद आए वो अपने आप हिट होनी है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप दोनों की केमिस्ट्री गाने में बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा सा बताइए किस तरह का एक्सपीरियंस था ये गाने में, और क्या कहना चाहेंगे गाने के? पहले तो मैं सबसे बात करना चाहूँगा उमेश जी को। सर लाउडली बोलिए ना, आवाज़ नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उमेश जी का, अनुजा जी का, कौशर का और सुंदर चौहान जी का जी, जो कि डायरेक्टर है। और जैसे कि गाना आपको पता है लव स्टोरी है, बड़ा अच्छा है, और इसमें मेरे को देख के कोई लगता नहीं कि मैं प्यार मेरे चेहरे से मेरे को देख के लगता है, थोड़ा सा उस इमोशन को, उस प्यार को बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगा, पकड़ने में चीज़ों को टाइम लगा, लेकिन जब हाथ में आई तो बड़ी स्मूथली निकली वो चीज़ें। एज एन एक्टर मैं एक्सपीरियंस किया है कि मतलब जब वो चीज़ें हाथ में आई तो बड़े स्मूथली निकली, और बड़ा मतलब, और आज देख रही हैं आप लोगों ने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उमेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि लोग कनेक्ट करेंगे गाने से, जो यूथ है हमारे देश का, स्पेशली जिस तरह का गाना है, जो जैसे स्टार्टिंग में एंकर ने भी कहा कि बहुत सारे लोग अपने कॉलेज में बहुत सारी स्टोरी से कनेक्ट करेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए कहानी मेरे ख्याल से जो भी कहानी हम करते हैं कभी भी, कहानी बनाने का हमारा मोटो ये रहता है कि everybody should relate with the storyline, then only you are ahead, otherwise if there are loopholes आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं कर सकते। ये हमारी कोशिश होती है एज अ कलाकार, एज एन आर्टिस्ट, आप किसी भी फील्ड में हो, जब आप कुछ भी बनाते हो तो आपको वो रिलेटेबिलिटी आपको अपने काम के थ्रू शो करनी पड़ेगी, चाहे वो गाना हो, चाहे वो पिक्चर फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो थिएटर कर रहे हो आप, या कोई भी लाइव आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, यू नीड टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। सो हमने मैंने अपनी तरफ से लिखा है गाना, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कॉम्पोजिशन वैसी की है जो आजकल चल रही है, लोग जैसा गाने सुन रहे हैं और जिस तरीके का रिस्पांस आप लोगों से मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि, और मैं होप करता हूँ कि गाना बहुत अच्छा होगा, और थैंक यू सो मच। ऑल्सो जैसे मैंने संजय सर को पूछा था रिस्पॉन्स के बारे में, जिस तरह का रिस्पॉन्स आज मिला है ऑडियंस से, कितनी खुशी होती है कि फाइनली लोगों को पसंद आ रहा है गाना, हमारा प्रोडक्ट जो बना है वो पसंद आ रहा है। खुशी तो डेफिनेटली, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई हल्का सा भी अप्रिशिएट कर देता है तो ही हम लोग इतने खुश हो जाते हैं, तो जब बहुत सारा प्यार मिलता है तो सोचिए कितनी ज़्यादा खुश हो। सो क्योंकि क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन है, इंसान है, और इंसान हमेशा एक रिस्पॉन्स का, एक अप्रिसिएशन का मौका होता है। इफ आई एम राइट, वी स्टिल आर ह्यूमन बींग्स एंड दीज आर द नॉर्मल ट्रेट्स ऑफ अ ह्यूमन बींग, कि हमने कुछ भी थोड़ा सा भी किया है तो यहाँ तो सबने अपना जी जान मिलकर डाल दिया है इसको खूबसूरत आउटपुट बनाने में। शेर मैं कहता हूँ अपने लाइव शोज में, हम लोग एक शेर बोलते हैं कि वो शेर ये है कि, बहुत लाइट शेर है, मैं कोई बहुत बड़ा शायर तो नहीं हूँ, कि आपकी ये मोहब्बत हमारे एहसास का काम करती है,
आपकी ये मोहब्बत हमारे एहसास का काम करती है। कलाकार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कलाकार किस चीज़ का भूखा होता है। आपकी ये मोहब्बत हमारे एहसास का काम करती है, और जब बजती हैं आपकी ये खनकदार तालियां, तो ये हम सभी कलाकारों के लिए डाबर च्यवनप्राश का काम करती है। तो ये ऐसी बात है, आप समझिए, मतलब यदि आपने अपना कुछ चीज़ सामने पब्लिक के रखी है, वो अप्रिशिएट होगी, तो डेफिनेटली you get motivated to give something else। यार करना है, तो ये वैसी वाली बात है। ये तो इनका शायरी सुन के लाइव शोज में मैंने बहुत यूज करना शुरू कर दिया, जहाँ लगता है कि अभी थोड़ा सा माहौल तो तुरंत ये डाबर च्यवनप्राश वाली शायरी ऑलवेज कम्स इनटू द पिक्चर। तो आपसे जानना चाहूँगा कि डांस मूव्स भी देखे हमने इसके अंदर, थोड़ा सा बताइए कि कितना चैलेंजिंग या फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका पूरी टीम के साथ फिर से कोलैबोरेट करना। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, पहला जो सॉन्ग आया वो सेकंड कोरियोग्राफ हुआ था, पहले ये कोरियोग्राफ हुआ था। सो पहली बार जब मुझे चैलेंजिंग इन द सेंस चैलेंजिंग तो कुछ भी नहीं था, ऐसे था कि जब कर रहे हैं तो फ्लो में होते गया। एंड अनुजा वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड, और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया हम लोग ने स्टेप सीखना स्टार्ट किया, कोरियोग्राफी होती गई एंड मज़ा आता गया। जोगिंदर के साथ में भी वी हैव वर्क, ये करना है वो करना है। जोगिंदर थोड़ा सा ट्रबल होता था, बट देन ही वाज लाइक नहीं करते नो प्रॉब्लम करते हैं। फ्लो में बहुत मज़ा भी आ गया। बड़ी गर्मी थी वहाँ पर, और उस गर्मी में थक सब रहे थे, बोर कोई नहीं रहा था, एंड सब एंजॉय कर रहे थे, अपने काम में लगे हुए थे। एंड मैं और उमेश दोनों एक चीज़ की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, जो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है। वी एंजॉय वर्किंग विद देम। स्पेशली मैं मेरे बारे में अगर बोलूँ तो मैं तो उन्हीं के साथ में काम करना पसंद करता हूँ जो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यज्ञेश ने ना एक्चुअली हाईलाइट कर दिया दोनों बार, एंड आई एक्चुअली मिस्ड टॉकिंग अबाउट इट कि गर्मी वाज सच अ बिग फैक्टर। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मतलब हमको पता नहीं क्या ही सूझा कि जून में जाकर और शूट करेंगे, मतलब जून एंड राजस्थान द पीक टाइम ऑफ इट। सो इट वाज लाइक रियली नॉट अ वेरी गुड डिसीजन ऑन दैट फ्रंट। लेकिन शायद आपको पता नहीं लग रहा होगा कि हम इतने तकलीफ में और इतने इरिटेशन काम कर रहे थे, जो एक दूसरे के ऊपर इरिटेशन निकल रहा था। यज्ञेश बॉम्बे आके वापस बोलता है मुझे पहचान नहीं रहे मेरे घर वाले, मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ, नो वन इज आइडेंटिफाइंग मी। जहाँ टाइम मिलता था हम जाकर छाँव ढूंढते थे, भाई छाँव में जाकर अपने फैन के सामने बैठे। पर एक्सपीरियंस, लव टुवर्ड्स आवर वर्क और पैशन। फर्स्ट गाना आ चुका है संजय सर या फिर अनुजा, आप उनसे जानना चाहूँगा और कितने गाने इस साल के लिए लाइन अप है, अगर उस बारे में कुछ बता दें हमारे बेस्ट पर्सन टू नहीं बिल्कुल, आई थिंक अब बस चलता ही है सिलसिला। जैसे आपने देखा कि बचवा शहनाई से मुंडा तक का ये सफ़र था, बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र था। ये और पहले हो जाता रिलीज, बट हम वेट कर रहे थे फॉर 2024 एज यू राइटली सेड। तो ये होता है कमिंग, मतलब कोई भी न्यू ईयर है तो कमिंग विद अ बैंग, लॉन्चिंग थिंग्स विद अ बैंग, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। इसीलिए और ये अब सिलसिला चलता रहेगा हर महीने, हर इट माइट बी, बट या दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। यू कैन नॉट, ये खत्म नहीं हो सकता। लास्टली 2 लाइनें हो जाए अगर आपकी आवाज़ में हमारी ओके। तेरी वो नदानियाँ और बदमाशियाँ सारा दिन मुझे याद आती हैं। हाय हाय तेरा मुझे देखना और फिर छेड़ना, छोटी छोटी बातें मुझे यूं सताती हैं। प्यार नाल बोल दे, दिल दा रास्ता खोल दे, प्यार नाल बोल दे, दिल दा रास्ता खोल दे, जो भी दे तू मुझको दे बता। मुंडा करदा तैनू प्यार दे इज़हार करदा, ओ तेरे नाम मेरी जिंदड़ी तेरे उत्ते मरदा। मुंडा करदा मैनू प्यार पर इज़हार नहीं करदा, ओ तेरे नाम मेरी जिंदड़ी तेरे उत्ते मरदा। ये चीज़ समझ में आती है, when you are in the search of love, that is what you get in return. Yeah. If you are in search of any materialistic thing that you get in return.
तो हमारा जैसा भाव खुद के लिए होता है, आई थिंक वही एनर्जी और वही एक्सप्रेशन अट्रैक्ट करते हैं. तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, इट्स ऑल फुल ऑफ लव. तो बस कीप स्प्रेडिंग लव एंड वी ट्राई टू डू द सेम थिंग विद आवर म्यूजिक. And again, I'm very happy on behalf of all of us. I'm sharing my feelings with all due respect to each and everyone जो यहाँ पे मौजूद हैं. बस अच्छा म्यूजिक सुनिए, हमें और मौका दीजिए अच्छा म्यूजिक बनाने के लिए. एंड पूरी मीडिया को तहे दिल से धन्यवाद. सारे लोगों को जो इस इवेंट में आज आए, उनका प्यार था इसलिए वो आए हमारे लिए. सो आई रियली वैल्यू योर टाइम एंड योर प्रेजेंस फॉर दिस इवेंट and all our future events. Thank you so much. डायरेक्टर और डीओपी अभी तो हमारे साथ में नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कितना एंजॉय किया आप लोगों ने स्क्रीन पे, जो इतने अच्छे दिख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए, थैंक यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. एक्चुअली ये पिछली बार भी एक कोइंसिडेंस था कि हमारे डायरेक्टर सत्येंद्र चौहान जी और हमारे डीओपी जो सिनेमा गिरी से फेमस है, उनका नाम है फैजल सिद्दीकी, वो यहाँ पर हो नहीं पाए बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली फॉर वर्क. लेकिन उनका प्यार और उनका जो एनर्जी था इस गाने को लेके, दैट वाज अमेजिंग. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू देम कि उन दोनों के कारण उन्होंने हम लोगों को भी झेला काफ़ी ज़्यादा और हमें बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया उन्होंने कि कैसे क्या करना चाहिए. उनका जो एंटायर कॉन्सेप्ट था, उनकी जो स्क्रिप्टिंग थी, इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर कि रात को 2-2 बजे तक बैठकर यज्ञेश और सत्येंद्र जी देवर वर्किंग 4 बजे तक. वो सॉरी कह रहा 2 घंटे क्रेडिट मत काटो. 4 बजे तक यज्ञेश और सत्येंद्र जी ने बैठकर उस पर आइडियाज करें कि इसको यहाँ दिखा सकते हैं, इस शॉट को ऐसे दिखा सकते हैं, इसकी कहानी ऐसे कर सकते हैं. और सुबह आकर हम लोग कुछ और ही बात करने लग जाते थे. पूरी मेहनत कुछ और ही रख ले लेती थी. But nevertheless, thanks and hats off to Satyendra ji and Faisal for such commendable work. And हम पूरी, as I always say, it's a team work. And एक जन का contribution के बिना this wouldn't have been possible the way it has come out to be, whether it is बजवा शहनाई या मुंडा. और हम लोग कहते हैं ना कि ये सारी पावर की, ये मेरा मानना है और आई थिंक हम सब इस बात से एग्री करेंगे कि हमारी मेहनत और हमारी जो डेडिकेशन है वो सब मुकम्मल तब होती है जब वो जो सुप्रीम पावर है ना, उसकी विशेष कृपा हम पे रहे. एंड बिकॉज ऑफ दैट सुप्रीम पावर आई थिंक थिंग्स बिकम स्मूथ, लाइफ ईजी हो जाती है. और उस सुप्रीम पावर से हम इंसानों को जो कनेक्ट करते हैं वो होते हैं सीड्स. सो आई वुड रियली वांट टू थैंक पूज्य स्वामी अभेदानंद जी फ्रॉम चिन्मय मिशन ऑफ साउथ अफ्रीका, जिन्होंने हमें ब्लेस किया और हर तरह से हमको ब्लेस करते हैं कि हम कुछ भी करें तो उन्हें मैं अगर याद ना करूँ तो शायद वो इनकम्प्लीट होगा और वो ग्रैटिट्यूड देना इनकम्प्लीट होगा. सो आई थिंक लव एंड ग्रैटिट्यूड आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ एनी ह्यूमन जो हमें नहीं भूलना चाहिए. सो थैंक्स टू मुंडा एंड थैंक्स टू एंटायर टीम, थैंक्स टू स्वामी जी, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू ऑल द लवली पीपल, ऑल द मीडिया एंड एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ दिस. Thank you.